شروع کرتا ہوں یشوع ہا مشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بارے میں جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، ان کی رائے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقدس لوگ یا مسیحی لوگ گیت گاتے ہیں کہ یسوع نے آنا ہے اور ہم نے بادلوں پر اس کا استقبال کرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان پر اٹھائے جانا ہے، بعض کہتے ہیں ہمارا ریپچر ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ بائبل مقدس کی کیا زبان ہے؟ سب سے پہلے پالوس کہتا ہے تھسلونیکیوں کے خط میں، اس کا 4 باب، اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ ہوں گے ہم بدل جائیں گے اور ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، بدل جائیں گے، اور ایک لفظ ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ تو میرے دوستو، جو خاص بات ہے کہ مسیح میں مرنا یا مسیح میں رہ کر مرنا یا مسیح کے ہو کر مرنا، ان 3 چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ مسیح میں رہ کر مرنا۔ تو مسیح میں رہ کر مرنا اصل میں موت نہیں ہے، اور مسیح کے ہو کر مرنا یہ بھی موت نہیں ہے، اور مسیح میں مرنا کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے، وہ کون ہے؟ دراصل یہ جو ہیں جو مسیح میں مرتے ہیں، یہ ہیں جو گواہی دیتے ہوئے شہادت کا جام پیتے ہیں، شہادت کا پیالہ پیتے ہیں، اور یہ شہادت کا پیالہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یسوع نے یہ اپنے شاگردوں کو دیا۔ شہادت لفظ جو ہے، شہید لفظ جو ہے، یہ وہ ہے جس کا مصدر شاہد ہے، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ جو گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، ان کے ماتھے پر جو ٹائٹل لگتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید، حالانکہ وہ مرتے نہیں ہیں، کیونکہ میری ڈاکٹرن کے مطابق یا میری سوچ کے مطابق یا جو خدا نے مجھے سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ جو یسوع کے ہو چکے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اور انہوں نے کبھی مرنا ہی نہیں، کیونکہ جب مسیح ہماری زندگی میں ہے، مسیح ہمارے اندر ہے، تو جس کے اندر مسیح ہے وہ مرتا نہیں، وہ بدلتا ہے۔ اس بات کو غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں، یا سادے لفظوں میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لیں کہ جس کے اندر مسیح ہے
वो मरता नहीं, वो बदल जाता है। जैसे पालूस कहता है थसलीकियों के खत में, हम बदल जाएंगे। लेकिन मरते कौन हैं? जो शहादत देते हैं, जो गवाही देते हुए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। और ये हर एक नहीं होता, ये जिसके लिए उसकी रजा है। जैसे पतरस रूम से भाग गया, उसको वो सलीब देने लगे थे, उसको वो शहीद करने वाले थे, तो पतरस का दांव चल गया और वहां से भाग गया। और रास्ते में उसे यीशु नासरी मिला और उसने कहा कि उसने पहचान लिया और उसने कहा कि उस्ताद तू किधर जा रहा है? तो उसने कहा मैं तेरे लिए दोबारा सलीब चढ़ने जा रहा हूं। जिसका मतलब है कि वो फैसला कर चुका था कि पतरस शहीद हो, इसलिए उसने पतरस को एक तरह से इस बात के लिए हिट किया, क्योंकि शहादत की मौत हर एक को नसीब नहीं होती। ये बड़ी उत्तम है जो कहा जाता है कि हम तख्तों पर बैठेंगे और बादशाहत करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है तख्त, और ना उसकी बादशाही मजाक है कि अतवार के दिन इबादत पे चले गए और वहां पर 5-10 रुपए चंदा डाल दिया, और जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया है उनको कोई चंदा दे दिया, कोई दायकी दे दी, कोई हदिया दे दिया, कोई नजराना दे दिया ताकि उनकी दुकान चलती रहे, और उन्होंने कह दिया कि आप तख्तों पर बैठेंगे। भाई ये कोई मजाक नहीं। तख्तों पर लिखा है, मकाशवा की किताब उसकी स्टडी करें तो उसमें लिखा है कि 10 दिन मुसीबत उठाओगे तो तुम्हारा बड़ा अजर है, रहाई पाओगे। जान देने तक वफादार रह, ये नहीं कि गिरजे जाने तक वफादार रह, तालियां बजाने तक वफादार रह, चंदे दायकियां हदिये देने तक वफादार रह, और आगे जो पखंडी पादरी हैं उनकी मौजें लगी रहें तो तू वफादार रह, तू देता रह। नहीं, वहां पर लिखा है जान देने तक वफादार रह, गवाही देने तक वफादार रह, आखिरी सांस तक वफादार रह, फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। जिंदगी का ताज, ये ताज कोई आजकल के बिशपों वाला ताज नहीं। कईयों ने ताज के ऊपर बटन लगाए हुए हैं, कईयों ने और वो बीबियों वाली लेस लगाई हुई है, और कईयों ने उस पर और गोटा किनारी लगाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे क्रिसमस के मजूसियों का एक ड्रामा हो रहा है। कईयों ने अपने लिबास पर कोई 12-12, 14-14 सलीबें लगाई हुई हैं। ये किस तरह का मजाक चल रहा है? क्या किसको ड्रामे कर करके दिखाए जा रहे हैं? कलाम मजाक है? कुछ हैं जो 3-3 घंटे ढोलकियां छैने बजाते रहते हैं, ए रूहे पाक उतर आ, ए रूहे पाक उतर आ, और आगे पादरी जो है वो किसी दूसरे कमरे में बैठा वो मुर्गे कढ़ाइयां खा रहा है, और गाने वाले ढोलकियां छैने बजा बजा के थक रहे हैं। कहां से उतर आया? वो तो ईद पेंतीकोस्त के दिन से उतर आया है। उसने कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा, अभी तक तुम्हें यह तसल्ली नहीं कि वो तुम्हारे अंदर है या नहीं। कहां पर उतरा है? कौन से वो दरख्त पर चढ़ाया हुआ है? किस मनार पर उसको बिठाया हुआ है? आपको रूह पाक रूह को मजाक समझते हैं? जब सताइश की जाती है तो अकल से करो, समझ से करो, होश से करो। सिखाने वाले भी मौज कर रहे हैं, गुलछड़े उड़ा रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, चंदे दायकियां हदिये नजराने लो, किसी ना किसी तरह से ठगो, और ए रूहे पाक उतरा। और कोई कहता है कि होली स्पिरिट की फायर आए, कोई कहता है होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर, क्या ये मजाक है? अपनी तरफ से जुमले बनाए हुए हैं।
संजीदगी से समझें कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। रूहुल कुद्दस आपके दरमियान है, वो आपके अंदर है, और जो उसका हो चुका होता है उसका ये बिल्कुल बटरफ्लाई, तितली की तरह की जिंदगी है, जैसे उसका एग है। आप इस जो मैंने ये तस्वीर दी है मैसेज के ऊपर, उसको देखें। ये उसका सर्कल है 4 तरह से। वो एग से एक आगे उसका लार्वा बनता है, प्यूपल बनता है, फिर कच्चा लार्वा होता है आगे, फिर उसके पर निकलते हैं, फिर जोर लगता है उसका और उसका गलाफ टूट जाता है, उसका कवर टूट जाता है और खूबसूरत पर निकलते हैं। इसी तरह इंसान की जिंदगी है। पहले वो एक अंडे की तरह की उसकी रूहानी जिंदगी है कि वो खामोशी के साथ लेमैन की हैसियत से बैठा रहता है। फिर वो चर्च के साथ चिमट जाता है, जैसे लार्वा चिमट जाता है। वो इबादत पे जाता है, रूटीन में आ जाता है, रीत बन जाती है, रीत से फिर रवायत बन जाती है। उसके अंदर एक ईमान का खूबसूरत इंसान पैदा हो जाता है, उसके अंदर जिंदगी आ जाती है, और वो जिंदगी फिर मसीह के आने तक वफादारी के साथ वो जुड़ा रहता है, मुकद्दसों की रिफाकत के साथ, दुआ रोजे के साथ, बाइबल स्टडी के साथ, खुदा की कुर्बत में बैठता है। और फिर जब वो बादलों पर आएगा तो इस जिस्म से हम निकल जाएंगे। हमने मरना नहीं है, हमने बदल जाना है, क्योंकि यस्सु जिंदगी का मालिक है। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हम बदल जाएंगे। जहां यस्सु है वहां मौत नहीं है, जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं है। आज मेरी लाहौर में बात हो रही थी, मेरे स्टूडेंट हैं वहां पर, तो वो मुझे कह रहे थे कि हमें ये समझाएं जरा कि ये जिंदगी का क्या भेद है। और फिर हमने काफी देर बात की। आज मुझे इसराइल से भी एक कॉल आई, वहां पर मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बात की कि जी हमें समझाएं जरा कि ये इसके अंदर सीक्रेट क्या है। तो मेरे अजीजों, सीक्रेट सिर्फ एक ही है कि अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहें, और ये कि खुदावंद तेरा शुक्र है तू हमें ईमान की दौलत दे। तो ईमान तो वो जो है वो तो अबलीस के फरिश्ते भी रखते हैं, शैतान भी ईमान रखता है, बल्कि थरथराता है, कांपता है। हिंदुओं का भी ईमान है, मुसलमानों का भी ईमान है, सिखों का भी ईमान है। ईमान तो बहुत लोगों का है, पर ईमान आपका किस तरह का है? ईमान मोहब्बत का है कि हम जो मसीही हैं हमारी दुआ में होना चाहिए, ऐ खुदावंद हमें अपनी मोहब्बत में बढ़ा, तेरी मोहब्बत हम में बढ़ती चली जाए, हम तेरी मोहब्बत में कायम रहें। ये नहीं कि ईमान में कायम रहें। क्या ईमान है? अगर आपकी मोहब्बत उसमें कायम रहेगी तो फिर वो आप में कायम रहेगा, वो आप में रहेगा। फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि रोते रहो, पीटते रहो, और वो झूठे नबियों की तरह कोहे करमल की चोटी पर और बजाओ और साज बजाओ और रो और पीटो। शायद तुम्हारा खुदा कहीं सोया हुआ हो। ऐ रूहे पाक उतर आ। वो किस मंडेर पर बैठा है जहां से उसको उतार रहे हैं? वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर रहता है। अगर आप इस काबिल हैं, आप अपने आपको इस काबिल बना चुके हैं कि वो आपके अंदर रहता है, तो फिर आपके अंदर दलेरी होगी, फिर आपके अंदर एक लगन होगी, फिर आप बड़ी जल्दी पखंडियों को समझ जाएंगे, फिर आप बड़ी जल्दी इन दुकानदारों को समझ जाएंगे जिनको ना इल्म इलाहियात का पता है, जिन्होंने ना कोई सेमिनरी की है, जो बेउस्तादे हैं, और आजकल उन्होंने खुद नहीं सीखा किसी जगह से, और जगह जगह छोटी छोटी सेमिनरियां बना के बैठे हैं और समझते हैं कि चलो 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लो, स्कूल से भागे हुए हैं तो 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लो और अपने ऊपर पास्टर लिख लो। ये मजाक है।
पालूस रसूल 3 साल अरबों में रहकर इल्म इलाहियात सीखता रहा, थियोलॉजी सीखता रहा। थियोलॉजी का मतलब है कि थायो का इल्म हासिल करना, खुदा का इल्म हासिल करना, खुदा की मर्जी को जानना कि उसका क्या मतलब। मैंने बहुत सारे पादरियों को सुना है जो बाइबल के मुहावरे हैं उसको भी थियोलॉजी की तरह बयान करते जा रहे हैं, जो मसाले हैं वो भी थियोलॉजी की तरह बयान करते जा रहे हैं, जो तमासील दी गई हैं उनको भी थियोलॉजी में बयान करते जा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि मुहावरे कौन से हैं। यीशु ने मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, बीच में मसाले पेश की हैं, तमसीलें दी हैं। वो अपने कल्चर के मुताबिक जो उस वक्त का माहौल था, सकाफतो तमद्दन था, उसके बारे में बात की है। इसलिए थियोलॉजी को समझो मेरे अजीजों, पाक रूह की मर्जी को समझो, वो कहां रहता है। यीशु को देखो कि वो कहां रहता है। जब वो लाजर के घर गया तो वहां फिर मौत खत्म हो गई। जब वो बीमारों के दरमियान गया तो बीमारियां खत्म हो गई। अगर यीशु आपके अंदर रहता है तो हमने मरना नहीं है, हमने बदलना है। जब भी हमारे अंदर वो जो बन रहा है, जब जैसे पालूस कहता है कि मसीह पूरी शक्ल आपके अंदर बना ले, पूरी शख्सियत मसीह की हमारे अंदर डेवलप हो जाए, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, जैसे एक माँ प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा कंप्लीट हो जाता है फिर वो डिलीवर करती है, इसी तरह से जब इस बॉडी के अंदर मसीह मुकम्मल तौर पे हमारे अंदर सूरत पकड़ जाएगा तो फिर उस वक्त ये कौल जो अब हम नजर आ रहे हैं ये टूट जाएगा और अंदर से वो सूरत निकल आएगी जो बादलों पर उठाई जाएगी। फिर वो सूरत निकल आएगी जैसी वो चाहता है। इसलिए पालूस कहता है कि मैं उनकी तरह जागता रहता हूं जिनको हिसाब देना पड़ेगा। और आज क्या हो रहा है? हम पहरों लोगों के लिए दुआ करते हैं या पहरों बैठ के इंटरनेट पे गोरे ढूंढते हैं या लिस्टें बनाते हैं कि किसने कितनी दयाकी दी या किस तरह से हमने लोगों को किस किस ध्यान लगाया हुआ है कि रूह को उतारो। फायर, होली स्पिरिट फायर, फायर, होली गोस्ट फायर। कहां से सीख लेते हो? उर्दू का तो सही पता नहीं है, उर्दू के तो सही मानी नहीं समझते, बाइबल को तो पूरा समझ नहीं रहे, तो कहां से ये चाल ढाल बनाई हुई है? किस 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 मामले में कंफ्यूज हो? इस कंफ्यूजन से मेरे अजीजों बाहर निकलो और इस तसल्ली में रहो कि मैं खुदा का खादम हूं, मैं खुदा की खादमा हूं, मेरे ऊपर किसी चीज का असर नहीं, मैं पक रहा हूं उसकी मोहब्बत में। जब मेरा टाइम मजबूत हो जाएगा, मेरे अंदर मसीह मुकम्मल सूरत पकड़ जाएगा, मैंने उस दिन इस दुनिया से जाना है और वो मौत नहीं है। वो एग से, लार्वे से, प्यूपल से मुकम्मल खूबसूरत तितली बाहर आ जाती है। तो वो आने का टाइम, उसकी तरफ ध्यान दें। रूह को नीचे उतार के क्या करोगे? उसको अंदर लेना है। उतरा उतरा उतरा, कहां से उतर आए? वो तो उतर चुका है। इसलिए होश के नाखन लें। खुदावंद आपको अपने कलाम के समझने की तौफीक दे, आपकी मसीह जिंदगी जो है उसको समझने की तौफीक दे कि हम जो खुदा के लोग हैं, हम अंदर ही अंदर, हमारे अंदर खुदा का रूह हमें इस लायक बना रहा है कि मसीह हमारे अंदर सूरत पकड़ जाए, ताकि हम उड़ सकें और उठाए जाएं और हमेशा हमेशा उसके साथ रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। अपना ख्याल रखें और मुकद्दसों के लिए दुआ करें और अपने तौर तरीके बदलें। जय मसीह की।